Hello, my dear students. You are most welcome to Geometrics classes. Myself, SK Jha. I will discuss about real numbers. I will start from basic concepts. So, I will start from classification of number system. Classification of number system. First of all, complex numbers. This is the largest number system, complex numbers. You will study in 11th class. There are two types of numbers. Real numbers and second is imaginary numbers. The whole number system is complex numbers, divided into two parts, real numbers and imaginary numbers. Those numbers whose square is non-negative. Those numbers whose square is non-negative. Suppose -5. -5 square is 25, which is non-negative, that is positive, and 0 and 1, 1/2, √2, pi, etc. Real numbers are denoted by capital R. And imaginary numbers, those numbers whose square is negative. For example, -1, √-2, √-3, √-4, etc. Imaginary numbers are square root of negative numbers. You will study in 11th class. Now we will study about real numbers. There are two types of real numbers. First, rational numbers. Second, irrational numbers. So we can say that real numbers are collection of rational numbers and irrational numbers. So let us start with rational numbers. The rational word made from ratio. Ratio of two integers. Basically, numbers which can be written in the form p by q, where p and q both are integers. P and q both are integers. And q not equal to 0. For example, -1, -5/3, 5/4, 22/7, 0.3, 0.5 bar, etc. -1 and 0 also. Is 0 rational number? Yes, 0 is a rational because 0 can be written as 0/1. 0.5 bar can be written as 5/9. 0.3 can be written as 3/10. This is 22/7. This is 5/4. This is -5/3, -1. All natural numbers, whole numbers and integers are rational number. Numbers which are not rational are irrational numbers. Irrational numbers are numbers which cannot be written in the form p by q, where p and q are integers and q not equal to 0. For example, √2, √3, √5, pi, 0.10, 100, 100, and so on. √2 is irrational number because the decimal expansion of irrational number is non-terminating
and non-repeating, non-terminating and non-repeating. If you find square root 2, then this is 1.414 dot 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 root 3 1.732 dot 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 pi 3.14 dot 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 0.10100 dot dot dot. These numbers, the decimal expansion of irrational number is neither terminating nor repeating. The decimal expansion of rational number is terminating or either terminating or non-terminating, repeating. There are two types of rational numbers. Integers and fractions. Integers, collection of natural numbers, zero and negative of natural numbers are called integers, and integers are denoted by Z. Dot 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 dot dot dot. These are integers. And fraction 3, 2 by 3, 3 by 2, 5 by 7, 7 by 5, etc. These are fractions. Integers are of two types. Basically, negative integers and non-negative integers. Non-negative integers. Negative integers are dot 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 -3, -2, -1, and non-negative integers are 0, 1, 2, 3 and so on. Non-negative integers are also known as whole numbers. Whole numbers. And whole numbers are divided into two parts, that is 0 and natural numbers. Natural numbers those numbers which are used for counting the objects are known as natural numbers or counting numbers. Natural numbers are also known as counting numbers. Natural numbers are denoted by capital N equal to 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Natural numbers are also known as positive integers. We can divide natural numbers as, अब इनमें से कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल है, कुछ ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है. तो those numbers which are divisible by 2 are called even natural number. Numbers divisible by 2 and general form is 2n, where n belong to natural number. If you put
natural number as 1, 2 into 1, 2, 2 into 2, 4, 2 into 3, 6, 2 4 is 8, and so on. Next is odd natural numbers. General form is 2n minus 1, where n belongs to capital N. 2 into 1 minus 1, 1, 2 into 2 minus 1, 3, 2 into 3, 6, minus 1, 5, 2 into 4, 8, minus 1, 7, and so on. These are odd natural numbers. Next, prime numbers. Those natural numbers which have exactly two distinct factors, that is 1 and number itself. For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. These are prime numbers where 2 is only even prime number, others are odd. There are 25 prime numbers lie between 1 and 100, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Total prime numbers are 25. Next, composite number. Composite numbers, those natural numbers which have at least 3 distinct factors. 4. Factor means exact divisor of a number. So 4 is divisible by 1, 2 and 4. So there are 3 factors, 1, 2 and 4. Next is 6, 8, 9, 10. What is the smallest composite number? The smallest composite number is 4 and the smallest 2-digit composite number is 10. Minimum number of factors of composite number is 3 and total number of factors of prime number is 2. Next, perfect square number. Perfect square numbers. Those natural numbers which are a square of some natural number. For example, 1 square, 1, 2 square, 4, 3 square, 9, 4 square, 16, 5 square, 25. You should learn up to 30 square. 6 square, 36, 7 square, 49, 8 square, 64, 9 square, 81, 10 square, 100, 11 square, 121, 12 square, 144, 13 square, 169, 14 square, 196, 15 square, 225, 16 square, 256, 17 square, 289, 18 square, 324, 19 square, 361, 20 square, 400, 21 square, 441, etc. Next, co-prime numbers. Co-prime numbers. ऐसे तो नाम से लगता है कि ये प्राइम नंबर होगा, बट वो नेचुरल नंबर का पेयर
जिसका HCF 1 हो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, या दूसरा नाम है इसका रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम numbers. Two natural numbers whose HCF is 1 are co-prime number. 1 के साथ कोई भी नंबर ले लो, पेयर बना दो, ये बन गया co-prime number, क्योंकि इनके बीच में कॉमन 1 है. 2, 3 दो लगातार कोई भी नंबर ले लो तो इसमें दोनों प्राइम नंबर है. आप 15, 16 ले लें तो इसमें 15 भी और 16 भी दोनों ही 15 ऑड नंबर है, 16 इवन नंबर है. इसमें से दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों का HCF जो है वो 1 है. 7 और 60 एटसेट्रा को प्राइम नंबर. ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स. अब इसमें कंडीशन है कि दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, और जो दो प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो इसको ट्विन प्राइम बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 3, 5 डिफरेंस कितना है 2, 5, 7 डिफरेंस 2, 11, 13 डिफरेंस 2, 17, 19 डिफरेंस है 2. तो ये ट्विन प्राइम नंबर है. LEMMA. It is a proven statement used to prove another statement. ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. It is a proven statement used to prove अनदर स्टेटमेंट. ये क्वेश्चन 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट इज लेमा. तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट. ये कुछ भी नहीं है, नथिंग, बस एक स्टेटमेंट है जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी प्रूव्ड है, और उसका इस्तेमाल हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं. अब नेक्स्ट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बेसिकली एक डिवीजन प्रोसेस है जो कि आपको पहले से मालूम है. डिवाइड करते आ रहे हैं आप, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. इसी बात को एक स्टेटमेंट दे दिया डिवीजन प्रोसेस को. यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था जिसने, तो इसका नाम हो गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अगर यही स्टेटमेंट राहुल गांधी दिया होता तो इसका नाम होता पप्पू डिवीजन लेमा. ये मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ. तो बेसिक बात यह है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है. गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, there exist unique integers Q and R such that A equal BQ plus R, where R is greater than equal to 0 less than B. अब ये स्टेटमेंट दिखने में बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं है. गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर आपको दिया हुआ है A और B, जिसमें A ग्रेटर देन B है. देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R. जब आप A को B से डिवाइड करोगे तो आपको कुछ क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा. तो इस तरह से कि A इक्वल BQ प्लस R होगा, और उसमें R का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा या बराबर और लेस देन B होगा. ये कैसे? अब ये देखिए, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर A is divided by another positive integer
B, then we get quotient as Q and remainder as R. Therefore, A equal to BQ plus R, where R is greater than equal to 0 less than B. सपोज करो कि दो पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास A और B. A ग्रेटर देन B है. अगर आप A को B से डिवाइड करोगे तो कुछ क्वोशंट Q आएगा और रिमाइंडर R आएगा. इसको बोलते हैं A को डिविडेंड. डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. आइए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज करिए आपके पास नंबर है 7. 7 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 3 जा 6 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया. तो अब ये 1 जो है इस डिवाइजर से छोटा है, इसको डिविडेंड बोलते हैं. डिविडेंड. इसको डिवाइजर बोलते हैं और इसको क्वोशंट बोलते हैं और इसको रिमाइंडर बोलते हैं. तो आप इसको लिख सकते हैं 7 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1. तो इस तरह से किसी भी नंबर को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ A क्या है डिविडेंड, B क्या है डिवाइजर, Q क्या है क्वोशंट, R क्या है रिमाइंडर. अब रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा वो 0 या 0 से बड़ा और लेस देन B होगा. तो R रिमाइंडर का वैल्यू 0 से छोटा नहीं हो सकता. रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा. आइए देखिए कोई नंबर लेते हैं, मान लो 16, 17, 18, 19. अब आप 16 को देखें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 8 प्लस 0. 17 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 इंटू 8 प्लस 1. 18 को डिवाइड करें 2 इंटू 9 प्लस 0. 19 को करें 2 इंटू 9 18 प्लस 1. अब आप देखेंगे कि ये जो 0 है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 16 से. 16 is completely divisible by 2. We get remainder as 0. When we divide 17 by 2, we get remainder as 1. फिर again when we divide 18 by 2, we will get remainder 0, and 19 by 2, we will get remainder 1. So in this case, when any number is divided by 2, then remainder will be either 0 or 1. It means remainder is more than or equal to 0, less than divisor. डिवाइजर यहाँ पर 2 है. इस केस में रिमाइंडर का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2. ये हर एक में होगा. सपोज किसी नंबर को आप 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है. व्हेन यू डिवाइड एनी नंबर बाय 3, द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0, 1, 2. व्हेन यू डिवाइड एनी नंबर बाय 4, the possible remainders are 0, 1, 2, 3. When you divide any number by 5, then possible remainders are 0, 1, 2, 3, 4, because less than 5. When you divide any number by 6, then possible remainders are 0, 1, 2, 3, 4, 5. Next topic is algorithm. Algorithm क्या होता है? Algorithm, well-defined series of well-defined steps which gives a procedure to solve a problem. Next is algorithm. 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, व्हाट इज एल्गोरिथम. स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. तो अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर, अ सीरीज of
well defined steps which gives a procedure to solve the problem. अब इसी में अब एल्गोरिथम समझते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा में बहुत थोड़ा सा माइन्यूटली डिफरेंस है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम क्या करते हैं, किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आता है। अब ये एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम किसी पॉजिटिव इंटीजर्स के हम एचसीएफ निकालते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन algorithm is a technique to find the HCF of two or more positive integers। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक टेक्निक है जिसकी मदद से दो या दो से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर का हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल वी टेक 20 एंड 32। ये दो नंबर हमारे पास है, 32 इज ग्रेटर देन 20, तो 32 को हम क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे। 21 जा 20, 22 जा 40, 2 से करोगे तो 32 से ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 1 से कर दो। 21 जा 20, रिमाइंडर 12। अब आप इसको एक स्टेप में, स्टेप 1 में लिखते हैं फाइंड एचसीएफ ऑफ। स्टेप 1 में लिखते हैं हम 32 इक्वल 20 इंटू 1 प्लस 12। वही यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किया यहाँ पर। ये हमारा डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। तो डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो 32 कैन बी रिटन एज 20 इंटू 1 प्लस 12। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि आप दो पॉजिटिव इंटीजर है तो बड़े वाले को आप छोटे वाले से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद देखो कि रिमाइंडर 0 आया कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर आप इन दोनों को डिवाइड करो। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, 12 से 20 को करते हैं। 12 1 जा 12, आपके पास बच गया 8। अब हम लिखेंगे 20 इक्वल 12 इंटू 1 प्लस 8। इन दिस केस रिमाइंडर इज नॉट 0, सो वी मूव फर्दर। 8, अब 8 से डिवाइड करेंगे 12 को। 8 1 जा 8, रिमाइंडर 4 आ गया। अब आप लिखिए 12 इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 4। अब इस स्टेप में भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से आप क्या करोगे, 4 से 8 को डिवाइड कर दो। 4 2 जा 8, अब आ गया रिमाइंडर 0। अब आप लिखोगे 8 इक्वल 4 इंटू 2 प्लस 0। 8 इक्वल 4 इंटू 2 प्लस 3 0। In this case, remainder is 0, so last divisor is HCF. Therefore, HCF of 20 and 32 equal 4. अब HCF होता क्या है, तो HCF of 2 or more positive integer is the largest number that divides both numbers exactly। जो भी दो नंबर दिया हुआ है या 3 नंबर दिया हुआ है तो HCF जो होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो उन गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे।
नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ये 1 मार्क का क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है रिमेंबरिंग से। रिमेंबरिंग में ये देखा जाता है कि आपको कोई स्टेटमेंट याद है या नहीं। तो ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए आपको कि ये स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। Every composite number can be expressed or factorized as a product of its product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which they occur. Every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. For example, 12 equal to 2 into 2 into 3, or 3 into 2 into 2, और 2 into 3 into 2। आप किसी भी ऑर्डर में इसको लिख देंगे, मल्टीप्लाई करने पर आंसर तो सेम ही आता है, तो इसलिए बोला अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर। तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आपने प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर समझे ही है, फिर से समझ लीजिए। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जो 1 से और अपने आप से डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। जिसके 2 और 2 ही सिर्फ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और कॉम्पोजिट नंबर जिसके मोर देन 2, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर इज 3। अब 12 है, 12 एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ऐसे बड़े सारे नंबर्स दिए होते हैं, बड़ा नंबर अगर दिया हुआ है तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखेंगे। अब हम बात करते हैं HCF का। नेक्स्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट में HCF बोलते हैं, और दूसरा नाम है इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको हम शॉर्ट में GCD, कई लोग GCF भी बोलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD, HCF और GCD। तो HCF और GCD ऑफ 2 or more integers is the largest number that divides the given number completely। तो HCF या GCD उस बड़े लार्जेस्ट नंबर को कहते हैं जिसके आप गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। सपोज करें कि
we can find the HCF as the product of each common factor with smallest पावर। मतलब ये हुआ कि HCF फाइंड करने के लिए आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसमें जो कॉमन फैक्टर होगा और उसका स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। सपोज हमारे पास दो नंबर है, सपोज करते हैं एक 12 है। अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। इट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 3। सेकेंड नंबर इज 18, 2 into 3 into 3, that is 2 into 3 square. तो what is HCF? तो what is common factor? Common is 2 and 3 both. What is maximum power? Smallest power? Smallest power of 2 is 1 and the smallest power of 3 is 1, that is 2 3 is 6. So 6 is HCF. Next topic, least or lowest common multiple, LCM. Lowest common multiple. LCM of two or more positive integers is the largest number which is exactly divisible by given numbers. अब कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसका आपको एलसीएम निकालना है, तो आप सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे और उसके बाद आप वो नंबर सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे जो उन गिवन नंबर्स को डिवाइड करे। तो टू फाइंड एलसीएम we take the product of each factor with greatest power. मैंने यहां पर बोला कि आप एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सारे प्रोडक्ट लेंगे और उसका ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर और एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर। जैसे यही नंबर ले लेते हैं हम, सपोज करो आपके पास है 12, तो 12 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 और 18 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब कौन कौन से फैक्टर है इसमें, 2 है 3 है, तो एलसीएम इक्वल हो जाएगा आपका 2। 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2 और 3 का ग्रेटेस्ट पावर 2। 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, तो 36 आपका एलसीएम हो गया। अब यहां पर एक रिलेशन एचसीएफ और एलसीएम में लेते हैं। relation between
LCM एंड HCF। तो सबसे पहला रिलेशन ये है कि अब आप देखिए यहां पर HCF 6 है और LCM 36 है। क्या रिलेशन है? 36 जो है 6 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब HCF मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ LCM। तो फर्स्ट रिलेशन ये हो गया, HCF मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ LCM एंड, और LCM को बोल सकते हैं आप ये मल्टीपल है किसका? 6 का। 6 फैक्टर है 36 का और 36 मल्टीपल है 6 का। एंड LCM मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ HCF। तो ये रूल आपको याद रखना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये रूल आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कि अब ये दो नंबर हैं 12 और 18, जिसका HCF आप देखेंगे, HCF ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू 6, कॉमा LCM ऑफ 12 एंड 18 इक्वल 36। अब हम यहाँ पर HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट निकालें तो क्या आएगा ये देखते हैं। HCF इंटू LCM इक्वल, तो HCF 6 है और LCM 36 है, तो 36 से इसको करेंगे 216 आएगा। अब अगर हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो मान लेते हैं दोनों नंबर को, एक को A दूसरे को B या PQ जो भी हो, A इंटू B करते हैं तो पहला नंबर आपका है 12 और दूसरा नंबर है 18। 12 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 216 आएगा। देन वी सी दैट कंक्लूजन ये हुआ, दी HCF ब्रैकेट में A कॉमा B यानी कि दो नंबर है कोई भी, इनटू LCM A कॉमा B इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। इट मीन्स HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, 2 मार्क का भी आ सकता है, 1 मार्क का भी और 3 मार्क का भी आ सकता है। 3 मार्क वाले में बड़े बड़े दो नंबर दे देंगे और बोलेगा फाइंड LCM एंड HCF एंड वेरीफाई द रिजल्ट HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, क्या ये 2 नंबर है, क्या ये 3 नंबर के लिए वैलिड है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं है। तो HCF A कॉमा B कॉमा C इंटू LCM A कॉमा B कॉमा C नॉट इक्वल टू A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। यानी कि ये सिर्फ, ये जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए है और 3 नंबर के लिए ये नहीं है। Next is decimal expansion of rational numbers। अब rational number the decimal expansion of rational number is either terminating or non-terminating repeating। Terminating, another is non-terminating repeating। अब terminating कौन सा होगा? तब कोई नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है P/Q के फॉर्म में, आप क्या करो उसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जब रिमाइंडर आ जाए 0 तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग है। जैसे आप एक नंबर लेते हैं 3/2, आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5, तो आफ्टर लॉन्ग डिवीजन आफ्टर सम स्टेप्स रिमाइंडर विल बी 0, वी गेट 1.5, दिस इज टर्मिनेटिंग।
सपोज 7/5 है। अब आप 7 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 2.020, 5 4 जा 1.4। तो डिनोमिनेटर में 2i 5i या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल आ जाए तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ऊपर में दिया हुआ है 141 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 पावर 2, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? तो बच्चे देखते ही बोलते हैं कि नीचे 3 है, ये 2 पावर m 5 पावर n के फॉर्म में तो है नहीं, इस फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नहीं, आपको सबसे पहले चेक करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन तो नहीं है। आफ्टर कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन यू कैन डिसाइड इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हम देखते हैं 141 जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 2 बच गया 21, 3 7 जा, तो ये नंबर हो गया 47/2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। अब देखो डिनोमिनेटर जो है वो 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो जब भी कोई नंबर आता है आपके पास, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये जानने के लिए आप क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि ये को प्राइम है या नहीं, यानी कि कोई कैंसिल हो रहा है कि नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए पी और क्यू, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो और 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में आ जाए तो आप उसको बोल दो टर्मिनेटिंग। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये आता है कि आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। तो आपके पास दिया रहेगा, सपोज करो 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर है। अब कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो आप डिवाइड करके नहीं देखेंगे, आप ऐसे ही आप 2 और 5 का पावर देखें, जो मैक्सिमम पावर होगा उतने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। तीसरे तरह का क्वेश्चन ये आता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। अब आप उसमें क्या करोगे, इंटू 5 कर दो, नीचे भी इंटू 5 कर दो। अब कहोगे कि आप 5 से क्यों इंटू किए, क्योंकि 2 का पावर 3 है, तो 5 का पावर भी 3 हो जाए तो 2 और 5 का ट्रिपलेट बन जाएगा, जिससे कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। अगर आप 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, 115 हो गया, और नीचे हो जाएगा कितना, 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। अब ये आपका हो गया 115 और डिनोमिनेटर में हो गया 10 पावर 3। अब इन यानी डिनोमिनेटर में 3 0 है, तो डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट्स 115 है, 1 2 3, यहाँ पर आप डेसिमल लगाइए 3 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो गया। अब मैं समझता हूँ टर्मिनेटिंग समझ आ गया होगा आपको। टर्मिनेटिंग से रिलेटेड 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, इसलिए बहुत अच्छे से समझिए टर्मिनेटिंग क्या होता है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको क्या देखना है कि पहले कैंसिल हो रहा है कि नहीं, पहले आप सबसे पहले कैंसिल करो, और कैंसिल करने के बाद देखो कि डिनोमिनेटर जो है 2 या 5 के पावर में है या नहीं। इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज आइदर पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5, देन यू कैन से दैट दिस इज टर्मिनेटिंग। लोग क्या करते हैं, बिना कैंसिल किए सीधे डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो उसमें आपका गलत भी हो सकता है। अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा, आप बिना कैंसिल किए करोगे तो उसमें नंबर नीचे अगर 2 5 के अलावा कोई नंबर आ गया तो आप बोल दोगे नॉन टर्मिनेटिंग, आपका 1 मार्क गया। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखिए। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/3 क्या होगा, तो अब आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.33333 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हो गया 0.3 के ऊपर बार। ये बार वाले जो नंबर होते हैं ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में नहीं होगा। 1/3 हो गया, 1/7 हो गया, 1/9 हो जाए, या फिर 2/11 हो जाए, इन सब का जो प्राइम 1/17 हो जाए,
1/19 हो जाए, कुछ भी हो जाए, डिनोमिनेटर में 2 5 के अलावा दूसरा नंबर कोई भी आ जाए, 2 भी हो 5 भी और उसके साथ में दूसरा, जैसे मान लो 1 मैंने 15 लिख दिया, अब यहाँ पर 5 × 3 है, 5 तो है पर साथ में 3 भी है, इसलिए नहीं होगा। क्या कहा मैंने? टर्मिनेटिंग उसी को बोलेंगे जिसके डिनोमिनेटर में 2 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, आइदर पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। या ऐसे कह सकते हैं कि अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q वेयर p and q both are co-prime will have terminating decimal representation if the prime factorization of q यानी denominator is in the form 2 power m into 5 power n where m and n are non-negative integers। इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में कोई रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में है, उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल तब बोलेंगे जब उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो ये था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तीसरा इर्रेशनल नंबर है। जैसा कि आपको मालूम है इरेशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो रैशनल नहीं है, यानी कि जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में किसे नहीं लिख सकते हैं? तो जैसे √2 हो गया। अब हमने एक बच्चे से पूछा कि √2 इरेशनल है या रैशनल, तो उसने कहा रैशनल। मैंने पूछा क्यों, तो कहता है इसको लिख दो √2/1, p/q हो गया। अब देखो p/q तो कर दिया, लेकिन p/q के साथ कंडीशन क्या है? p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। क्या √2 इंटीजर है? नो। तो सिंस √2 इज नॉट इंटीजर, अब √2 का अगर आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो 1.41425 एंड सो ऑन, बहुत दूर तक जाएगा। यानी कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। So √2 is irrational, √3 is irrational, pi is irrational, 0.100100 and so on dot dot dot, ये irrational number होते हैं। तो what is the decimal representation of irrational number? The decimal representation of irrational number is neither terminating, non-terminating and non रिपीटिंग। बस बच्चों आज के लिए इतना ही। रियल नंबर चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट बस इतना ही है जिस पर आपको ध्यान देना है। इफ योर फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग, इफ फाउंडेशन इज स्ट्रांग, बिल्डिंग विल बी स्ट्रांग। इसलिए कुछ करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए।